Hi everyone, how are you all? Good evening, sir. Rest of the guys? Hello, Aman. I hope you're Hi, safe. everyone. One Aparna this side. Okay, thank you, Aparna. Yeah. So, guys, to make this interested, to you guys have to be participated यार. मतलब मैं कुछ पूछूंगा आप और आंसर्स नहीं तो कुछ फायदा नहीं इन सेशंस का. So I will be putting questions. You guys need to answer those questions. So let's make it participative. So I am again. Hi again. How are you all? Great. Fine, sir. Fine, sir. Fine, Fine, sir. sir. Fine, sir. गुड. काफी लोगों ने अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया बट आई गेस आगे वो पार्टिसिपेट करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट. So guys, let me give you a quick introduction of mine and my experience. So my name is Aman Bansal as an HR professional and currently associated with Kelton Tech Solutions Limited in Gurgaon. So it's been 5 years in the industry now. I have worked with recruitment consultancies, BPOs and IT organizations as an HR, and I feel very great to share my experience and knowledge to you guys. Also, I would like to thank Growmore community and Aman Kesarwani for providing me the opportunity to share my experience with you all and helping you guys for the interviews. So guys, we will be discussing how to build the resume and how to tackle HR interview questions. So first round of question जो interview होता है that is taken by HR, so that I will guide you how to tackle the HR interview questions so that you guys can end up getting placed in organizations of repute. So most of the guys are freshers, I believe. या कोई experience भी है? Yes, Aman. Aparna is experienced. Okay. Anybody else? Yes, Aman, me too. Okay. Yes, sir. बाकी सब freshers हैं, I guess. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Cool. Yes, sir. Yes. So guys, let's get it started. Let me present my screen to you guys. कुछ कंपनी में कहते कि आपके परसेंटेज भी चाहिए हमें, मतलब ऑल 10 से लेके फाइनल ईयर तक. तो वो टेबल भी मतलब रेज्यूमे में डाल सकते हैं क्या, 1 पेज के? Then I will repeat my point कि do not use table and columns in your resume. What you can do is, अगर वो आपसे मार्कशीट पूछा कि आपके हर सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए थे, तो बुलेट्स पॉइंट यूज करो, बुलेट एंड देन हमें देके उसमें परसेंटेज लिख दो, बट डोंट यूज टेबल्स एंड कॉलम्स. क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 2010 यूज कर रहे हो, वो 16 यूज कर रहा है, तो वो टेबल की फॉर्मेटिंग हिल जाएगी और उनको किसी और फॉर्मेट में मिलेगी जो कि पढ़ ही नहीं पाएंगे वो. तो एक और मतलब मेरा क्वेश्चन है, अगर हम जो लिखते हैं मतलब एजुकेशन में, इफ आई एम पास इन 10 और उसके सामने अगर परसेंटेज लिख चारों साल इंजीनियरिंग के या फिर 12 के या फिर 10 के, तो वो चलेगा? वो जो आप चारों साल की आपसे स्पेसिफिक हर रेज्यूमे में मत लिखो. आप लास्ट में बस लिखो कि मेरी जो एग्रीगेट थी जो मेरी 4 साल बाद आई वो 73 या 75 थी. आप अगर कोई स्पेसिफिकली अलग ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांगती है कि आप मेरे को 6 सेमेस्टर के नंबर चाहिए, तो उनके लिए एक अलग से रेज्यूमे बनाओ और वो उनको दे दो. बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं मांगते कि मुझे 6 सेमेस्टर चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो आपसे आपकी सारी सेमेस्टर्स की कॉपीज लेंगे ही ऑलरेडी, तो वो उनसे तभी पता चल जाएगा उनको. तो रेज्यूमे में एट द टाइम ऑफ रेज्यूमे और इंटरव्यू बस ये देखते हैं कि बंदे को कितना, कैंडिडेट को कितना आता है. ठीक है. Okay, thank you, sir. Hello. I have a question. Hello. Yeah, I am audible to you. Yes. Hi, Aman. This is Mahavir. Okay. Yeah. So, I just wanted to know about the things which can help us to crack the interview for Amex, because it's been 1.5 years working with the Concentrix, and after some time I will be going to give the interview for Amex. So, can you please help me how to crack the interview for Amex? Sure. That I will let you know in the next slides of mine. Okay.
So I am asking Alright. about the interview. I mean asking about the resumes में अगर किसी को प्रॉब्लम है कुछ तो कि resume में और क्या डालना चाहिए क्या नहीं चाहिए. Interviews तो I have my slide अभी 15-20 slides हैं HR की और क्या क्या questions क्या पूछते हैं वो उसके क्या आंसर होने चाहिए ideally. तो वो मेरे अगली स्लाइड में है. ठीक है. So guys, any questions? Sir, I have a question. Yes, tell me. Can I switch to any field if my qualifications are different? Yeah. But you need to do a certification because freshers को, for example, आपने B.Tech की है, ठीक है? और अब आपको मूव होना है HR, ठीक है? तो being from the technical background, आपको HR का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है. तो आप 2-3 मंथ्स की सर्टिफिकेशंस होती है कंपनी, मतलब जो कंपनीज प्रोवाइड करवाती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है. सर्टिफिकेशन होती है HR में, तो आप वो सर्टिफिकेशन करके यू कैन चेंज योर फील्ड. बिकॉज आप जब इंटरव्यू दोगे, चाहे आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट लिटिल नॉलेज तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ कैंडिडेट को थोड़ी सी नॉलेज हो. Yes. सर्टिफिकेशन विल बी द बेस्ट. अगर आपको अपना ट्रैक चेंज करना है तो सर्टिफिकेशन इज द बेस्ट थिंग इफ यू कैन डू. Okay, thank you. Thank you. Anybody else? Sir. Hello. Hello, sir. Yes. Tell me. Sir, could you show those slide? Okay. So guys, we are good to go with the resume. Next, we are moving to how to handle the interviews. Guys, interviews के 5 phases होते हैं. Before the interview, at the interview, interview room में क्या होना चाहिए, during the interview and after the interview. So we will discuss one by one for the interview. ये सब चीजें clear होनी चाहिए. Let me go to it one through one. The candidate need to be very clear about the job, what they have applied for, what is the job description, what are the duties and responsibilities that go with it. The candidate should be very clear. That is very quite obvious कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करने वाले हो. जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाओ, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी इफ यू गॉट शॉर्टलिस्टेड. बिकॉज इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि कैंडिडेट डू यू नो कि व्हाट वुड बी योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू विल बी परफॉर्मिंग इफ यू गॉट सेलेक्टेड. तो अगर आपको पता होगी कि आप क्या काम करने वाले हो तो यू विल मेक इट थ्रू. बट आपको पता ही नहीं होगा कि आप इसलिए आए हो तो वो सोचेगा कि इसको तो पता ही नहीं क्या करना है. तो सेकंड इज they need to do a proper research on the company they have applied to. For example, if you are applying for Concentrix, वो पूछते हैं कि what do you know about the company, तो तुम्हें कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए. Third is the candidates can practice some sample questions and answers in front of mirror or with a partner before the real interview. For example, how to introduce ourselves when we meet the interviews for the first time. So guys, ये confidence, obviously confidence is the main thing. अगर आपका पहला इंटरव्यू है एज अ फ्रेशर, सो मेक श्योर कि आप किसी में या फिर किसी पार्टनर के साथ में या फिर मिरर के सामने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. फॉर एग्जांपल अगर HR इंटरव्यू ने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ओके, सो आप कॉन्फिडेंस लूज ना करो, आप कॉन्फिडेंटली बता सकते. बिल्ड होगा, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड के सामने प्रैक्टिस करो. Learn some deep breathing exercises to calm them. Be confident at the interview. होने के लिए this is the second thing. Third, fifth, candidate should prepare well for the interview. A good preparation will help them feel more relaxed. So guys, these are some of the before the interviews tips जो please make sure करना. सर Yes, ask me. सर अगर कोई वर्ड सर गलती से निकल जाता है, मतलब सर थोड़ा सा टेंशन तो मतलब सर सॉरी बोल के मतलब उसको रिपीट करें ना करें, मतलब नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं बिल्कुल करो. क्योंकि जो आपका इंटरव्यू दे नो यार कि आप फ्रेशर हो, आपने काफी मेहनत की होगी कॉन्फिडेंट इनफ दिखाने की, बट समहाउ इफ यू आर फ्रेशर, आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ भी अगर कुछ गलती से कुछ निकल जाता है, ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फंबल हो जाते हो, तो आप सॉरी बोल के डीप ब्रेथ लेके आप खुद ही स्टार्ट हो सकते हो. तो वो आपकी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक भी प्रूफ करेगा कि आपने हार ना मान के वहां से स्टार्ट किया सब कुछ. ओके सर. ओके, सो गाइस दिस इज बिफोर द इंटरव्यू टिप्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज एट द इंटरव्यू. अब इंटरव्यू में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. सर वैसे इंग्लिश बोलना जरूरी सर इंटरव्यू में?
दे प्रेफर कि आप इंग्लिश बोलो। तो मतलब आप ट्राई कर सकते हो, इंग्लिश बोलने के लिए भी काफी एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर पे। नहीं, वो तो सर आती बहुत है, बट सर एक मतलब जनरली पूछा मैंने। हाँ बिल्कुल, आपके जो जितने भी इंटरव्यूज होंगे कोई भी आपको हिंदी में एंटरटेन नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि अगर मैं एंट्री कर रहे हो तो इंग्लिश इज मस्ट लैंग्वेज। बेशक से टंग लैंग्वेज है, बट कॉर्पोरेट में ये सब नहीं चलता है। एक बार सेलेक्ट होने के बाद जो आपके जितने भी कंपेनियन है, कलीग्स है, उन सबसे हिंदी में बात करोगे। बट एट द टाइप ऑफ इंटरव्यू यू गाइज नीड टू शो दैट हमें बेसिक इंग्लिश आती है। वो आपसे एडवांस भी नहीं एक्सपेक्ट करते, बट हाँ बेसिक इंग्लिश, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होंगी, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग एट द इंटरव्यू। सो दीज आर द वेरी क्वाइट ऑब्वियस पॉइंट्स यार कि ड्रेस्ड, ठीक है, वेल ग्रूम्ड विद अ नीट हेयर स्टाइल, कट नेल्स एंड अ फ्रेश एंड क्लीन लुक, relevant original documents. Candidate should arrive at the interview venue before time because punctuality is very important factor in setting the right impression. Off silent mode phone or introduce yourself smartly. This is the quite obvious points. ये सब तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इंटरव्यू रूम में क्या करना चाहिए? या Sir, at the next slide you have tell that you have to be in means आपको अच्छे से होके जाना, वेल ड्रेस होके जाना। मीन्स आपको पूछना था तो बियर्ड रखने से चलता है, नहीं तो क्लीन शेव मैंडेटरी। एज अ फ्रेशर दे एक्सपेक्ट यू टू बी, मतलब बियर्ड को आप ज्यादा अहमियत ना देके अभी आप ज्यादा अहमियत उसको दो। तो दे एक्सपेक्ट यार अगर कोई फ्रेशर आ रहा है तो वो अपनी बियर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके वो अपने वेल ग्रूम्ड और वेल ड्रेस्ड चीज को ज्यादा देगा। तो मेक श्योर कि बियर्ड काट के और प्रॉपर हेयर कट लेके फिर ही जाओ। इफ यू आर फ्रेशर, डजंट मैटर कि आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप बियर्ड में जा सकते हो। दैट टू वो भी ग्रूम्ड होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। सो वी वर डिस्कसिंग द इंटरव्यू रूम। आस्क एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? सर मैम, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको बुलाया और आप सीधा धार से गेट खोल के अंदर जाके बैठ गए हो। ठीक है, मेक श्योर गाइस ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेक श्योर कि आप परमिशन लो कि कैन आई कम इन, एक्सक्यूज मी सर। ग्रीट द इंटरव्यूअर्स विद अ स्माइल। यू कैन से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। ठीक है, पॉज फॉर रिस्पॉन्स एंड इफ नो वन आस्क यू टू सिट डाउन यू कैन आस्क मे आई सिट डाउन प्लीज। सो बिना पूछे मत बैठना गाइस। अपने आप वो खुद बोलते हैं कि प्लीज हैव अ सीट, तो ठीक है, बट अगर वो नहीं बोला उन्होंने कुछ तो यू नीड टू आस्क सर मे आई सिट डाउन प्लीज, रिस्पॉन्स एंड देन सिट डाउन एंड से थैंक यू। तो जितना आप थैंक यू बोलोगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन कि आप कैसे आए हो, आप कैसे अंदर चल के आए हो। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक श्योर कि इन सब चीजों का ध्यान रखना। ड्यूरिंग द इंटरव्यू किस चीज का ध्यान रखना है गाइस? मेक आई कॉन्टैक्ट वाइल स्माइलिंग विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। जो आपके जो इंटरव्यूज होंगे सिंगल टू सिंगल पर्सन नहीं होते हैं। ठीक है, 2-3 लोग होते हैं, जो कि एक ऑब्जर्वर होता है, एक क्वेश्चंस पूछता है और एक जो वो पूछ रहा है कि आपने क्या आंसर दिया वो राइट डाउन करता है। तो मेक श्योर कि आप तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए तीनों से आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो while smiling with all the interview board। किसी एक के साथ नहीं, सिर्फ जो पूछ रहा है उनको रिप्लाई दे रहे हो। तीनों इंटरव्यूअर है, तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देके आई कांटेक्ट बनाना है और स्माइल करते रहना है। वेट फॉर देम टू आस्क, मेंटेन आई कांटेक्ट, डू नॉट लुक डाउन और ट्विडल विद योर थम्स, कीप काम एंड सिट स्टिल बट बी रिलैक्स्ड, नो वन विल बाइट यू। गाइस बी रिलैक्स्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर द इंटरव्यू अगर आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको दिखाने के लिए निकाले हैं तो प्लीज कलेक्ट योर सर्टिफिकेट्स बैक एंड से थैंक यू विद अ स्माइल एंड लीव द रूम। सो ये आपका हो गया इंटरव्यू खत्म। करते हैं अच्छा इंटरव्यू। गाइस दीज आर दी बेसिक इंटरव्यूज क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं हो सकते, बट हाँ दीज आर दी बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस जो अगर मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं 5-6 क्वेश्चंस तो पूछता हूँ ये वाले, टू नो कि कितनी तैयारी करके आया और क्या है। तो गाइस उसमें से सब कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
anybody from you guys किसी ने तैयारी की हो, tell me about yourself की, तो let me see कि क्या क्या आप prepare करते हो, and then I will see कि I will tell you guys कि क्या क्या होना चाहिए. तो anybody from you, anybody one, कोई भी एक बंदा अपना मतलब if I am asking question कि tell me about yourself, तो कोई भी एक बंदा बता great, then I will tell you कि आपने क्या क्या mistakes की और क्या क्या introduction में होना चाहिए. Anybody? Yes, sir. Great, yeah. Thank you for participating. You can start. Let me ask you, what's your name? My name is Monica Sharma. Okay, Monica, can you please tell me something about yourself? Okay. My name is Monica Sharma. I was born and brought up in Delhi. My educational qualification. I am pursuing my graduation from Bharati College affiliated to Delhi University. Now coming on to my family details. My father is a priest and my mother is a homemaker. I am confident and extrovert kind of me, different from any other fresher. I play cricket. Apart from this, love listening songs and dancing on the beats. And I'm looking for an organization where I can enhance my skills. Thank you so much, Monica. बहुत अच्छा introduction दिया आपने. Guys, a round of applause for Monica यार. इन्होंने participate भी किया और बहुत अच्छा इन्होंने बोला भी अपना introduction. A round of applause. Guys, सबसे. Thank you, sir. Thank you all. चलो next पे चलते हैं कि actually होना क्या चाहिए था. So guys, ये सब होना चाहिए. What all should it include? For example, मोनिका, अगर मैंने आपको बोला कि give me सबसे पहले तुम्हें मेरे को बोलना था, तुम्हें मतलब किसी भी HR को बोलना था, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. Okay, sir. ठीक है, सबसे पहले आप उसको थैंक यू बोलो कि यार थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. देन आपने सब कुछ बोला, सब कुछ कंसिडर किया कि हाँ नेम आपने कंसिडर किया था, बॉर्न एंड बॉटम आपने कंसिडर किया था, आपने एजुकेशन बताया, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं बताया, इंटर्नशिप कोर्सेज नहीं किए तो नहीं बताया, फैमिली डिटेल्स बताई, हॉबीज बताई, एंड दैट्स ऑल अबाउट मी. थैंक यू. सर ये फैमिली डिटेल्स भी इम्पोर्टेंट है क्या? इम्पोर्टेंट होती है एज अ फ्रेशर क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर उठेंगे. फॉर एग्जांपल इफ यू से कि माय फादर इज अ बिजनेसमैन, तो फिर वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि व्हाई डोंट यू हैव जॉइन योर बिजनेस फादर्स बिजनेस. तो दे वांट टू नो कि अगर फादर सर्विस में है ऑलरेडी तो दैट्स ओके, ठीक है, बट बतानी पड़ेगी बिकॉज आपको जो इंट्रोडक्शन है वो ज्यादा इतना कुछ है नहीं ना, मतलब एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन कोर्सेज. अगर बिजनेसमैन हो तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि किस टाइप का बिजनेस है और आपने अपने फादर का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करके आप हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. मान लो स्मॉल बिजनेस है तो बोल सकती. मैंने अपनी ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तो मैंने ट्राई किया था कि पापा का मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पापा का बिजनेस एक्सपेंड करने के साथ साथ मैं अपनी एक जॉब भी कर सकूं. आई एम अ मल्टीटास्कर. मैं जॉब के साथ अपने पापा का बिजनेस भी एक्सपेंड कर रहा हूं. सर वो बोलेंगे कि आप अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, जॉब की तरफ कम ध्यान दोगे. नहीं यार, वो तो क्वेश्चंस पे मतलब क्वेश्चन तो वो कितने भी पूछ सकते हैं, बट यू हैड टू रीबटल्स कि आपको बोलना पड़ेगा उनको कि नहीं सर, मैं आई हैव मेड माय माइंड कि मेरे को अपने फादर के साथ बिजनेस में नहीं जाना है क्योंकि मैं सर्विस में जाना चाहता हूँ. आई वांट टू बी अ सर्विस पर्सन. तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पढ़ के पता चल जाएगा. ठीक है, so these are the questions. होना चाहिए name. My name is Amal Bansal. I was born and brought up in Delhi itself. Coming on to my educational qualifications, I have done BBA from here. I have done MBA from there. I carry 5 years of experience. I have worked with this companies. Coming on to my family, my father is a service. Hobbies. Coming on to my hobbies, I love reading newspapers and I like to see the news on the TV or internet regarding the what's new in the HR, what are the payroll and PF new laws.
सो गाइज मेक श्योर कि आप जो हॉबीज दे रहे हो ना, हॉबीज उनको बता रहे हो, वो मैचिंग करती है आपके रोल से, तो वो सब आप देख लेना। एंड लास्ट में दैट्स ऑल अबाउट मी सर, थैंक यू। तो ये आपका हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मतलब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज ये आपने कि ये आप विदाउट किसी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स के बोलो, तो ये चीज तो आप मेक श्योर करना कि ये किसी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक से करो और इसमें रुको ना। जैसे मोनिका भी रुक गई थी एक बार, तो मेक श्योर कि आप मिरर के सामने अपनी इतनी प्रैक्टिस करो, प्रार्थना के सामने इतनी प्रैक्टिस करो कि आप कम से कम योरसेल्फ अपने इंट्रोडक्शन देने के बीच में मत रुको, ठीक है। तो मेक श्योर ये हो गया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। नेक्स्ट पे चलते हैं, हायर यू। कोई फ्रेशर से पूछेगा कि आप मतलब 50 कैंडिडेट्स आर सिटिंग आउटसाइड बट व्हाई शुड आई हायर यू? एनीबडी कोई अच्छा सा आंसर दे सकता है मुझे इस चीज का? क्योंकि मैं कंपनी को बहुत तरक्की करवा दूंगा सर, यही दो चार बात बोलनी है इस तरीके की। हाँ, इसके अलावा और कोई पॉइंट्स? मैं हार्ड वर्किंग हूँ, डेडिकेटेड टू वर्क हूँ। ओके, आप ठीक हो, ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छा है। और कोई एनीबडी एल्स? मैं कंपनी को मतलब अगर वो मल्टीनेशनल नहीं है तो मल्टीनेशनल बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आप कंपनी को तो मल्टीनेशनल नहीं बना सकते हैं। सिर्फ एक एम्प्लॉय मल्टीनेशनल कंपनी को नहीं बना सकता, बाकी नहीं सर, मेहनत करवाएंगे सर। हाँ नहीं, आप मेहनत करो, वर्किंग हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव द कंपनी माय बेस्ट, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कंपनी को मल्टीनेशनल बना दूं। दैट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। कि सही आंसर क्या होगा व्हाई शुड आई हायर यू का? एज आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर, मैं फ्रेशर का बता रहा हूँ। एज आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर, बीइंग अ फ्रेशर आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू थिंग्स। एज ऑफ नाउ आई हैव अ थियोरेटिकल नॉलेज, सो आई नीड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स टू improve my practical knowledge. I will definitely give my best to the organization. उससे सर उनका क्या फायदा है सर? वो तो हमारे मतलब इस आंसर के थ्रू तो ये पता चलता है हमें अपना मतलब ओन इंटरेस्ट है, उन कंपनी को क्या फायदा होगा उससे? कंपनी को ऑलवेज फायदा होगा ना, वो उन्होंने जो थियोरेटिकल नॉलेज लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में हो और उनके क्लाइंट्स है, तो अगर वो आप प्रैक्टिकल नॉलेज कंपनी में लाओगे, अगर वो कहते हैं कोई कंपनी कोई क्लाइंट है, जैसे डेलॉइट क्लाइंट है, डेलॉइट ने अपना काम आपकी कंपनी को दे दिया और आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से उनका काम कर रहे हो, तो डेलॉइट कंपनी को पैसे दे रही है, कंपनी तुम्हें पैसे दे रही है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि मैं सब कुछ सीखा सिखाया हूँ, बस मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली प्रूव कर सकूं, एंड आई विल गिव यू माय बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर, ठीक है। तो गाइस दिस इज वेरी क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑब्वियसली फ्रॉम अ फ्रेशर, वो मतलब एक्सपीरियंस है, दे वांट टू नो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम दिस एंड दिस एंड दिस। सो गाइस दीज आर दी बहुत सिंपल आंसर्स हैं इस चीज के। टू स्टार्ट विथ माय वीकनेस, गाइस मेक श्योर कि आप ना, अगर उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो डोंट मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलो। ऐसे नहीं कि आपने 2 लाइन में बोल के चीजें खत्म कर दी। तो बहुत ये सुनो आंसर। टू स्टार्ट विथ माय वीकनेस, my inability to stay no puts me under a lot of stress at a time. However, I am learning to overcome my weakness so that I can focus more on productive tasks. Now, talking about my strength, I am good at multitasking. During my college days, I was a part of my dad's business, but still, I managed to get a good CGPA all through my final year. So, strength से ये पता चला कि यार बंदा multitasking है, अपने डैड के बिजनेस के साथ साथ उसने अपना, मतलब आप सिर्फ ये भी बोल सकते थे कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ, बट अच्छा आंसर और अच्छे आंसर में और बहुत अच्छे आंसर में क्या होता है कि आपने मल्टीटास्किंग बोला, बट मल्टीटास्किंग का आपने एग्जांपल भी दे दिया कि ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज आई वाज अ पार्ट ऑफ माय डैड्स बिजनेस, इसलिए मैं अपने आप को मल्टीटास्किंग कहता हूँ। और अपनी वीकनेस भी ऐसी बताना कि ऐसा ना लगे कि कंपनी को लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि मैं किसी को मना नहीं कर पाता, कोई भी काम दे मुझे तो मैं उसको मना नहीं कर पाता। हाउएवर, पर मैं उस चीज पे वर्क कर रहा हूँ टू ओवरकम माय वीकनेस सो दैट आई कैन फोकस मोर ऑन प्रोडक्टिव टास्क। सो दिस इज अ वेरी गुड आंसर।
if someone asks you what are your strengths and weaknesses, why do you want to work at our company? बताओ guys, answers बताओ. What should be the ideal answer of this? सर इसका एक मैंने आपकी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि मेरे स्किल्स जो हैं इस कंपनी के लिए मतलब सूटेबल हैं और मुझे काम है वो मैं इस कंपनी के लिए कर सकता हूँ. तो एक आंसर ऐसा हो सकता है. एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आंसर दिया है. एनीबॉडी एल्स? सेम. ओके सर. एनीबॉडी एल्स? Sir, before going to an interview, we should inquire about the company. Excellent. Yes, बिल्कुल inquire करना चाहिए about the company. My answer would be that I've read about the company, which has a great company and career objectives which are which matches with my ambition to do and excel well in my job. Matches with the company's objective also. Great, बहुत अच्छा आंसर है. बस गाइस मेक श्योर कि जो आप आंसर्स बोल रहे हो ना ये आपने रटे हुए ना हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप आंसर कोई पढ़ के बोल रहे हो रटे हुए ना तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि ये बना के बोल रहा है, मतलब खुद बना के नहीं बोल रहा है, इसने कहीं पढ़ लिया. अगर आपने पढ़ के आया हुआ है तो उसको ऐसे बोलो कि उसको पता लगे कि यार आप अपने मन से बोल रहे हो या फिर पढ़ के आ रखे हो. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है. सर, एवरीवन वांट्स टू बी वर्क विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड मेक देयर स्किल्स स्ट्रांग एंड आई बिलीव दिस कंपनी इज वन ऑफ देम. दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड इन दिस कंपनी. सेकंड बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? आई बिलीव every person, mainly freshers, work in a reputed company like yours. I think this is the best platform for me to explore my knowledge and skills for the good progress of the company. यहाँ पे उसने अपना भी बता दिया एंड कंपनी के बारे में बोल दिया कि गुड प्रोग्रेस फॉर द कंपनी ऑफ द कंपनी के लिए आई कैन यूज ऑल माई नॉलेज एंड स्किल्स. तो दिस बाकी जो मुझे आपने आंसर्स दिए दोनों बहुत अच्छे थे, बट गाइज मेक श्योर कि आप इस चीज का आंसर दे रहे हो तो अटक के मत देना प्लीज. आप कॉन्फिडेंट होके मिरर के सामने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग इज इजी. तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है बट इम्पॉसिबल इज नथिंग. तो इसका भी आंसर ये दोनों बहुत अच्छे हैं. तो मैं जो पीपीटी है मैं अमन को दे दूंगा, अमन सबको दे सकता है इफ यू वांट टू हैव सम आंसर्स ऑन दिस. सो बाकी गूगल पे भी मिल जाते हैं. So next पे चलते हैं. What are your goals? What are your goals? Anybody जो बताना चाहता हो what are your goals as a company perspective कि कंपनी वाले आपसे पूछ रहे हैं कि what are your goals for the future? So what should be your ideal answer? Success. Okay. So my Python develop. Okay. Again guys अगर आप आंसर दे रहे हो तो make sure कि एक लाइन का आंसर मत दो, ठीक है? कम से कम 2-3 लाइन का आंसर दो उनको कि वो उन्हें लगे कि हाँ आप एंगेजिंग एम्प्लॉय बन सकते हो. बट आप बोलोगे कि हाँ व्हाट आर योर गोल्स? आई वांट सक्सेस, आई एम हार्ड वर्कर, आई एम दिस, आई एम दैट. तो अपना गोल्स जो है, आपके गोल्स है वो, आप किसी चीज को एम कर रहे हो तो एम कर रहे हो किसी चीज को, गोल को एक्सप्रेस करो अपने गोल्स को कि आपके क्या गोल्स है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, आपके शॉर्ट टर्म क्या गोल है. आप मतलब ये भी सोचो कि आप ये भी बोल सकते हैं सर हम अपने आप को 5 साल बाद एक बिलियनियर देखना चाहते हैं. हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बहुत अच्छा आंसर है, ये भी बोल सकते हो. मैं दिखा दूं आपको आंसर, आइडियल आंसर इसका क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले तो अगर गोल्स की बात करें तो हियर यू नीड टू ऐड बोथ द गोल्स कि मेरे शॉर्ट टर्म ये गोल है और मेरा लॉन्ग टर्म ये गोल है. माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू सिक्योर अ स्मार्ट वर्किंग रोल इन योर कंपनी. ठीक है, कंपनी करना चाहता है, ठीक है, तो ये हो गया स्मार्ट टर्म गोल. सेम अगर वो पूछे, अगर आप खुद बताओ कि सर आई हैव अ लॉन्ग टर्म गोल ऑल्सो, तो वो पूछेगा हाँ बताओ. सो माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी प्लेस्ड इन अ हायर पोजीशन in your company with sheer determination and perseverance, also to be a successful person and make my parents feel proud. Guys, इससे अच्छा आंसर इसका कुछ हो ही नहीं सकता कि what are your goals. इसमें आपने दोनों मेंशन करने हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में आपने एक पर्सनल को भी प्राउड फील कराया, ये भी बता दिया
कि प्रोफेशनली तो मैं सेम कंपनी में काम करना चाहता हूँ है और हायर पोजीशन पे मैं कंपनी के भी साथ हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं सक्सेसफुल पर्सन बन के अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। तो दिस इज द वेरी गुड आंसर फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सर कुछ ऐसा नया नहीं है जो मींस हम ही बोलेंगे, क्योंकि ये तो सर मतलब मोस्टली बच्चे गूगल पे से देख लेते होंगे। बोल ऑब्वियसली यार, अब सबके आंसर्स अलग अलग नहीं हो सकते ना, तो आपका आंसर ऐसा होगा, बट ये जो आंसर्स जो मैंने बनाए हैं ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट लगेंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर। वो पक्का बोलते होंगे कि मेरे को आपके शॉर्ट टर्म हर किसी का यही गोल होता है कि मैं आपकी कंपनी में सेलेक्ट होना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म सबका ये होता है कि मैं आपकी कंपनी में हायर पोजीशन पे होना चाहता हूँ, बट इसके अलावा इसका कोई और अच्छा आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म कुछ और बताओगे कि मैं हायर पोजीशन में सेलेक्ट होना चाहता हूँ गूगल पे, तो बंदा कहेगा कि यार ये तो 6 महीने बाद 1 साल बाद छोड़ देना चाहता है मुझे। तो ये बोलना बहुत जरूरी होता है उनको इम्प्रेस करने के लिए, पोजीशन इन द सेम कंपनी, इन योर कंपनी विद डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस, so that makes a very good impression on the HR. ओके सर, हम ऐसे भी बोल सकते कि मैं आपके कंपनी में काम करके फॉरेन में भी काम करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो आप बोल सकते हो ऑल्सो, और सक्सेसफुल पर्सन वाला भी बोल सकते हो कि मेरे को सक्सेसफुल पर्सन बनना है एंड आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ दीज। व्हाट आर योर गोल्स हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, अगर आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एट द एंड में से लिखवा लो कि वो हमेशा आपसे पूछेंगे कि आप इंटरव्यू देने आए हो ना, ठीक है, बताओ टेल मी समथिंग अबाउट योर कंपनी। ठीक है, तो मुझे बताओ उस कंपनी के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अब आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि हाँ कंपनी यहाँ पे है और ऐसे है और वैसे है। आप 5-6 चीज है जो आप कंपनी उसको उस कंपनी के बारे में आपको बतानी होगी एचआर को कि हाँ भाई मैं अच्छे से कंपनी के बारे में पढ़ के आया हूँ। तो क्या चीज होनी चाहिए सर? कंपनी का अचीवमेंट्स होना चाहिए। नहीं, स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्ट करो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉन्सेंट्रिक्स में इंटरव्यू देने गए हो तो सबसे पहले आप स्टार्ट अचीवमेंट से नहीं करोगे ना कि कंपनी की ये अचीवमेंट है। आप स्टार्ट कैसे करोगे? कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में बताओ या फिर गूगल के बारे में बताओ। अगर आप गूगल में इंटरव्यू देने गए तो मैं पूछ रहा हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट गूगल, टेल मी समथिंग अबाउट गूगल। पहले फाउंडर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। फाउंडर्स, कंपनी किसने फाउंड की थी, कंपनी का करंट सीईओ कौन है, ये एक चीज हो गई। मुझे अभी तक एक ही चीज पता चली है, एक ये। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए? ये कब फाउंड हुआ था? सर एक्चुअली द ग्रेट प्लेस टू वर्क। ठीक है, ग्रेट प्लेस टू वर्क हो गया। सर कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सेक्टर होना चाहिए, फाउंडर्स हो गए। ग्रेट प्लेस टू वर्क आप बोलने के लिए अच्छा है, बट ठीक है ये कोई इंप्रेशन नहीं डालेगा कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी ग्रेट प्लेस टू वर्क। ठीक है, तो गाइस किस चीज की पोजीशन पे है फिलहाल? हाँ सर, पोजीशन पता होना चाहिए। हाँ सर, ठीक है, पोजीशन हो गई। और मिलाएंगे कि जैसे अभी 10th पे तो हम इसको 9th पे ले जाएंगे, 8th पे ले जाएंगे। ठीक है, पोजीशन होनी, पोजीशन पता होनी चाहिए। ओके सर, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स? नहीं 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 नहीं, नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स आप कभी भी मत बोलना। आप कंपनी में बोलोगे कि आपकी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स ये है तो दैट डजंट लुक गुड। ठीक है, कई एचआर अच्छे होंगे तो ठीक है उस पर वर्क करेंगे, बट कई अगर इगोस्टिक एचआर्स भी होंगे तो बोलेंगे कि तो ये तो मेरी कंपनी के बारे में नेगेटिव व्यूज लेके आ गई है, अभी तो इसको पता भी नहीं है कुछ कि अभी तो ये फ्रेशर्स है और ये हमारी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल रही है, फिर आगे जाके अगर ये सिलेक्ट हो गई तो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज को भड़काएगी, ऐसे बोलेंगे। हाँ, ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। फाउंडर्स हो गया, सेक्टर हो गया, पोजीशन हो गई, और बताओ। और सोचो गाइस। सर कंपनी का कल्चर कैसा है? कल्चर तो मैं कैसे पता, कल्चर ऑनलाइन ही पता कर सकते हैं ना आप। हाँ सर। हाँ, और बताओ। कंपनी का विजन, हाँ कंपनी का विजन मिशन पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है
कि आपको कंपनी का मिशन या विजन पता होना चाहिए, बट हाँ समवेयर आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का विजन क्या है, वो क्या सोचती है 10 साल बाद, 15 साल बाद, मिशन क्या है कंपनी का। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट आप कर सकते हो। बट जो 6 चीज है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैंडेटरी है। मेक श्योर यू हैव डन योर होमवर्क, यू शुड नो अबाउट द कंपनी विद हुम यू आर गिविंग इंटरव्यू। सबसे पहला रीजन जो आपने बताया था कि फाउंड कब हुई है, नहीं फाउंडेड तो किसी ने बताया ही नहीं कि कंपनी कब बनी, कब 2008 में बनी, 2006 में बनी, 2000 में बनी, 1995 में बनी, कब बनी, किसने फाउंडेड वाला मेंशन नहीं किया। सीईओ एंड द की पीपल्स, ठीक है बता दिया था आपने। हेडक्वार्टर, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, यूएस में है, यूके में है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसकी कोई सब्सिडरीज है कंसर्न कंपनी, कोई है नहीं है कि किसी कंपनी इस कंपनी ने किसी को 2-3 साल पहले एक्वायर किया है कि नहीं, आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। नेशनल प्रेजेंस है या नहीं है, अगर यूएस में ऑफिस है तो, अगर बेल्जियम में है तो बेल्जियम में कौन कौन सी जगह ऑफिस है। इंटरनेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए आपको कि हाँ भाई कंपनी के बारे में बंदा पढ़ गया है, उसको पता है कि इंटरनेशनल प्रेजेंस है और कहाँ कहाँ पे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में है, आईटी कंपनी है, बीपीओ है, एफएमसीजी है, फार्मास्यूटिकल है, इंडस्ट्री कौन सी है और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आईटी कंपनी है तो किस चीज में डील करती है, वो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है। आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाती है, आईओएस एप्लीकेशन बनाती है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो गाइस these things make sure कि अगर कोई आपसे पूछता है कि कंपनी tell me something about my company, तो ये सब चीजें पक्का बताना। विजन एंड मिशन बताओगे नहीं बताओगे चलेगा, बट ये जरूर बताना कि कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी इंटरनेशनल प्रेजेंस है या नहीं, हेडक्वार्टर, सब्सिडरीज, सीईओ एंड द की पीपल्स कौन कौन है और कब फाउंड हुई। ओके गाइस, ओके यस सर। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। एट लास्ट हर कोई आपसे पूछेगा इंटरव्यू के बाद, मतलब ये जब 5-6 क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाएंगे, आपसे पूछेगा कि मोनिका डू यू हैव क्वेश्चंस फॉर मी, या विराज डू यू हैव क्वेश्चंस फॉर मी, या एनीबडी डू यू हैव क्वेश्चंस फॉर मी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो सर, नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। आपकी जो पहली प्रायोरिटी है दैट शुड बी नॉट बी पैकेज कितना होगा। आई नो कि अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमें पूछना बनता है कि पैकेज कितना होगा, बट हाँ अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो यू नीड टू मेक जो चीज मेक श्योर करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, शुड बी द लीस्ट प्रायोरिटी। क्योंकि सेलेक्ट हो जाओगे तो वो एचआर से बाद में नेगोशिएट हो जाएगा कि मैं 3 मांग रहा हूँ और वो 2.5 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, वो नेगोशिएट हो जाएगा। बट अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और लास्ट में वो बंदा पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप नो भी नहीं बोल सकते हो उसको कि नहीं नो क्वेश्चंस, मुझे सब कुछ पता है। आपको सब कुछ नहीं पता है ना, तो आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे जिससे कि उसको पता लगे कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो उस कंपनी को ज्वाइन करने में। सो यार कुछ भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहोगे कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि सर कितने % शेयर मार्केट में, ऐसा कुछ। ठीक है, और So what will be the role of my in your company? ग्रेट, बहुत एक्सीलेंट आंसर दिया आपने कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ कि मेरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे से एक्सपेक्टेशंस आप क्या रखते हो कि एक न्यू ईयर ज्वाइनर कैसा परफॉर्म करे। और बहुत अच्छा आंसर था। इसके अलावा सर आप एक फ्रेशर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ सर? बहुत एक्सीलेंट आंसर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस? So, what value additions that I can make to this company if I join and before? Excellent man, excellent आंसर, बहुत अच्छा आंसर है। इसके अलावा चलो लेट मी टेल यू कि क्या क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। सबसे पहले वो पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, आपको रिप्लाई करना है श्योर सर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड बाय यू, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अब आपको पता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एचआर चला जाएगा, तो ये आपका लास्ट मौका है अपना इंप्रेशन बनाने का। तो उसको बोलो कि श्योर सर और मैम,
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आपने मेरा इंटरव्यू लिया. इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. क्या क्या पूछ सकते हो? हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस कंपनी? तो अच्छा एक्सपीरियंस बताएगी अपना कि मैं 5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. अगर आप कंपनी का कल्चर जानना चाहते हो, आप एक्साइटेड हो, तो आप जरूर ये क्वेश्चन पूछोगे कि मैम यहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब कल्चर कैसा है. और कल्चर किससे पता चलेगा? जो बंदा वहाँ काम कर रहा है. आपके सामने कौन बैठा है? HR. तो HR से बेटर पर्सन तो कोई हो ही नहीं सकता बताने के लिए कि कल्चर कैसा है. तो उससे पूछो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा था व्हाइल वर्किंग विद दिस कंपनी. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सेकंड इज I just wanted to ask what kind of exposure I could expect from your organization, and also I would be satisfied if you give me suggestions on the areas that I need to focus on to survive in this prestigious organization if I get selected. of communication skill चाहिए तो आप इसको तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हो कि ठीक है कि क्या एक्सपोजर है, और मतलब मुझे कोई सजेशंस बता दो कि ठीक है कि मैं ज्वाइन करूं और सजेशन में तो मुझे किस चीज को पड़ेगी. तो अकॉर्डिंगली अपनी नोटिस बनाना. बाकी क्वेश्चन सामने वाले को अच्छा इंप्रेशन जाता है कि वो जानना चाहता है कि अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो उसको किस किस चीजों को वो HR से. बहुत अच्छा क्वेश्चन आप जो पूछ सकते हो. आई वुड लाइक टू नो अबाउट द एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव फॉर द न्यू टीम मेंबर. एग्जैक्टली जो मुझे बताया था किसी ने कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है न्यू टीम मेंबर से इन दिस पोजीशन, एंड ऑन वन मैट्रिक्स और स्केल माय परफॉर्मेंस विल बी एवल्यूएटेड. क्वेश्चन है कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट द करंट सिचुएशन. जैसे कि इन्होंने पूछा था कि शेयर मार्केट प्राइस क्या है या क्या है, तो शेयर मार्केट प्राइस ना पूछ के आप ये पूछ लो कि कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट द करंट सिचुएशन. नो सर, प्राइस नहीं सर. सर मींस सर कितने परसेंट मतलब शेयर्स जो ओनर होल्ड करता है, मतलब ऐसा कुछ. हाँ ठीक है, समझ गया मैं. हाँ ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन, वो भी पूछ सकते हो आप, बट इस टाइप से पूछना कि कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी एंड व्हाट इज द फर्स्ट चैलेंज वुड बी फेस्ड बाय द न्यू पर्सन. अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो सबसे ज्यादा मेरे को चैलेंज किस चीज में आएगा. तो पहले HR से पता, आपके ज्वाइन करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. सर हम अपना फीडबैक भी ले सकते हैं इंटरव्यू का. करेक्ट, आप पूछ सकते हो, बट आपको मिलेगा क्योंकि उस राउंड के अभी HR इंटरव्यू है, उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू भी होगा ना. तो आप फीडबैक पूछ सकते हो, बट वो आपसे यही बोलेंगे कि दैट वी विल लेट यू नो. अभी आपका सेकंड राउंड भी होने वाला है, फिर थर्ड राउंड भी होगा, तो वी विल लेट यू नो. तो HR हमेशा ये बोलेगा कि आपका सेकंड राउंड. बट हाँ आप पूछ सकते हो, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. क्या हाउ मैम द फीडबैक ऑफ माय इंटरव्यू, मतलब किस चीजों पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, क्या मेरी कॉम स्किल्स में मुझे वर्क करना चाहिए था, कि मैं थोड़ी सी थी. क्वेश्चंस पूछ सकते हो, दे ऑलवेज वेलकम क्वेश्चंस यार, बट मेक श्योर कि क्वेश्चंस ठीक हो. मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हो आप, बट हाँ सबसे पहले पूछना कि श्योर सर, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड बाय यू. इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. पहले आप उसकी तारीफ करो कि थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया. और उसके बाद कुछ 4-5 में से या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगता है, बट मेक श्योर कि यार अपनी इंप्रेशन मत खराब कर देना कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ के कि फिर वो लीस्ट प्रायोरिटी होती है. वो अभी पहले इंटरव्यू के बाद आप नहीं पूछ सकते मेरा पैकेज क्या होगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा. तो दीज आर दी सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क फ्रॉम द HR. ओके सर. गाइस एनी क्वेश्चंस? अब पहले हमने रिज्यूमे राइटिंग पे पूछा था, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि अगर आपका HR इंटरव्यू ले रहा है या फिर आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बिफोर द इंटरव्यू आप सबको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अब हम डिस्कस कर सकते हैं. तो कोई I mean, I am welcome to answer. Sir, am I audible? Yeah, you are audible. Tell me. Sir, I am JSIT student. अगर मैंने कोई Android ऐप डेवलप किया या XAMPP सर्वर या कोडिंग से कोई भी गेम बनाया तो रिज्यूम में ऐड कर सकता हूँ क्या? Yes, बिल्कुल. मैं कहता हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस आपने जो भी किया है
आउट ऑफ द वे जाके कि आप, मैं पढ़ रहा था, मैं 4 साल से बीटेक कर रहा था, बट आउट ऑफ द वे जाके मैंने ये काम किया है, तो आपको ये स्टैंड अलोन कर दिया। फ्रेशर्स इंटरव्यू देने आए हैं और आपके रिज्यूमे में ये लिखा हुआ है कि मैंने एक एंड्रॉइड ऐप बनाई है खुद, आउट ऑफ द वे जाके, साथ में पढ़ते पढ़ते, तो ऑब्वियसली इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन यार। तो आपका एक्सपीरियंस हो, सर्टिफिकेशन हो, आपने कोई ऐप बनाई हो, कोई यूएक्स डिजाइन की हो, कोई वेबसाइट डिजाइन की हो व्हाइल स्टडिंग, तो इट विल एडिट एज अ एडवांटेज इन योर रिज्यूमे। तो सर कोड भी लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा ना उसमें, कोड अगर बोले दिखाने के लिए तो? कोड यार, कोड वो नहीं इतना सब कुछ नहीं, मतलब आपसे एप्लीकेशन के बारे में पूछेंगे कि आपने कैसे इसके बनाया, आपके अंदर मतलब क्यों आया कि आपको इस चीज के ऊपर ऐप बनानी चाहिए, तो उस सब का आंसर देना है। अगर आपने बनाया है तो दे विल, मतलब वो पूछेंगे नहीं कि कैसे बनाया, मुझे कोडिंग करके दिखाओ, येलो लैपटॉप कोडिंग करके दिखाओ। वो उन्हें अगर पता लग गया कि आपने बनाया है, तो सेकंड राउंड जब होने वाला होगा टेक्निकल इंटरव्यू में, तब वो आपसे पूछ सकते हैं। बट एचआर शुरू का जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है, उसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कोडिंग करके दिखाओ मुझे इस चीज की, आपने ऐप कैसे बनाई। सेकंड ऑफ इंटरव्यू जो होगा टेक्निकल, जो कि आपने कौन कौन से कैसे कैसे यूज किए। बट फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दे विल जस्ट चेक योर कॉम स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें चेक होती है इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू में। सर कितने राउंड होते हैं? यार डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई स्मॉल और मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो 3 राउंड इज इनफ, कि आपका पहला एचआर से होगा, एचआर से अगर आप पास थ्रू हो गए तो सेकंड आपका वापस एचआर से नेगोशिएशन राउंड होगा कि आपका टेक्निकल राउंड अच्छा गया और उन्होंने हमें को ये फिगर बताइए, तो डू लेट मी नो इफ यू आर ओके विद दिस, जॉब लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन क्या है, ये सब। तो मिड साइज में और स्मॉल साइज में 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। बट अगर आप सीधा फ्रेशर अप्लाई करोगे गुड कंपनी, टॉप कंपनीज में, फॉर एग्जांपल ईवाई हो गई, ईवाई, डेलॉइट, अमेरिकन एक्सप्रेस, तो ऑब्वियसली आपके होंगे, बिकॉज वो आपको अच्छा स्टाइपेंड प्रोवाइड कर देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, तो वो तो बेस्ट, मतलब कहते हैं ना कि मार्केट से मलाई उठाएंगे वो, तो वो पैकेज भी अच्छा प्रोवाइड करेंगे। बट वो 5 इंटरव्यू भी लेंगे। बट मिड साइज में और स्मॉल साइज में 3 इंटरव्यूज इनफ। सर जैसे हम किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गए तो हम दूसरी कंपनी में सर अप्लाई नहीं कर सकते सर इंटरव्यू में? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल आपको कंपनी ने आज बोला कि हमें इसी, मतलब फॉर एग्जांपल आज 10th ऑफ मार्च है, तो आप जिस कंपनी में आप सिलेक्ट हो गए उस कंपनी ने बोला आपको कि आपको 15th को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यू हैव गुड 5 डेज, अगर आपके पास 5 दिन है, अगर 5 दिन में अगर आपको कोई ऑफर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना 15 से तो आपको ज्वाइनिंग करना ही है। बट वो 15 से फिर 16 ना हो, प्रॉब्लम हो जाएगी। सर जैसे हम दूसरी कंपनी हाँ मना कर सकते हो कि लेकिन आपको एक अच्छा रीजन देना पड़ेगा कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने वो सैलरी के लिए किया है तो पहली कंपनी आपको 3.5 लाख दे रही थी और दूसरी कंपनी कह रही है 5 लाख, तो आप पहली वाली कंपनी को ऐसा मत करना कि यार मतलब बिल्कुल उनके कॉल्स नहीं उठा रहे हो और कुछ मेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो अगर उनकी तरफ से मेल आई या फोन आए तो आप फोन करके डायरेक्टली बोल सकते हो कि फाइनेंशियल, मतलब फैमिली में फाइनेंशियल या फिर लर्निंग मिल रही है उस कंपनी में, दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन योर कंपनी, बट अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर द इंटरव्यू। तो इस तरह से आपको हाँ प्रॉब्लम नहीं होगी पहली वाली कंपनी को। सर हमारे जो यूनिवर्सिटी कैंपस हो गए उसमें जितनी भी कंपनी आएगी हम सब में बैठ सकते हैं, मतलब? यस। हमें प्रेफरेंसेस नहीं देनी होती सर कि हम कुछ टॉप 10 ही कर सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ तो नहीं होता ना? नहीं, आपके जो कहेंगे वो उसमें तो सबको बिठाया जाता है। अब वो कौन किस में सेलेक्ट हो रहा है, कौन किस में सेलेक्ट हो रहा है, तो वो ऐसे होता है। तो आप n नंबर ऑफ कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके सर।
Any questions, guys? सर लेकिन कुछ कंपनीज होती है ना कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो वो अगर आपको ऑफर लेटर आया तो आप नीचे साइन कर देते हो, ऊपर लिखा होता है कि आपको क्या, अगर आपने कंपनी को ज्वाइन किया तो आपको लिक्विडिटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अच्छा, तो फिर उसका भी थोड़ा वो हो जाता है शायद। नहीं, मैं आज तक अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में कभी इस तरह की सिचुएशन में आया नहीं हूँ। आज ज्वाइनिंग के बाद, फॉर एग्जांपल आपने 15 को वो कंपनी ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपको एक ऑफर मिला, ठीक है, तो वो आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी ने आपको हायर किया है तो उसने क्लाइंट को बता दिया कि मैंने इस बंदे को आपके लिए तो न्यू बंदा ढूंढने में प्रॉब्लम होगी और क्लाइंट को भी फिर वेट करना पड़ेगा। तो किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप छोड़ सकते हो, बट ज्वाइन करने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइज वी थिंक वी आर गुड टू गो। बाकी अमन से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अमन केसरवानी से आप कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी ईमेल आईडी ले सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, I would love to help you guys. Thank you for providing me the opportunity. Thank you so much, sir. Wonderful webinar. Thank you, sir. Most of the guys are asking for next webinar. Guys, session, how was the session? कुछ feedback मेरे लिए? सर excellent. feedback चाहिए यार, feedbacks की मतलब की बहुत अच्छा। Great sir, great. Thank you guys. आप सब लोगों से मोटिवेशन मिलती है, बट अमन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की हेल्प करके और ऐसे सेशंस रख रहे हो। आई मीन इमेंस प्लेजर यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी opportunity. Thank you so much, sir. It is only possible like you guys, like you sirs and whole industry people who are willing to help other students who are not able to join this type of session and work, didn't get any job and good opportunity due to lack of this information. Thank you, Manav. Thank you. So guys, we are good to go. Have a good night. Sweet dreams. Bye bye. Yes. Thank you guys for joining. Have a great day. Till then, you can fill the feedback form. Thank you. If you want to join Gromo community, just fill another form, that is bit.ly/Gromo community. Thank you everyone. Have a great night.